Hello everyone, welcome to Blessed Institute. Today we are on the last topic of this chapter, that is called binary operation, and this topic is of relation and function, you know very well. So today we are entering in the last topic. So remember it, in the next week we will complete this chapter, which is very important for this 12th. Remember it. Now the binary operation. Binary operation is also one kind of function. See, in the name of binary, bi means two. So it is operation between two elements. Right? See, it is a definition. A binary operation star on a set A is a function star from A cross A to A, which is denoted by star. Here the domain is A cross A, means the element will be in the order pair form. So star AB, or also we can write in this way. So this is new way for V to represent the function. अभी function के बदले हम f नहीं लिखेंगे, but we will write in place of f star. जैसे मैं एक यहाँ पे आपको एक function दे रहा हूँ कि it is called on A. अच्छा, second thing आपको ये भी माइंड करना है कि भाई ये it is a limitation कि भाई ये जो सेट है वो पूरा A ही है, मतलब स्टार फ्रॉम n क्रॉस n टू n, so it is defined on n. स्टार फ्रॉम z क्रॉस z टू z, so it is defined on z. स्टार फ्रॉम r क्रॉस r टू r, then it is so. ऐसा नहीं आएगा हमारे सिलेबस में कि स्टार फ्रॉम n क्रॉस n टू z, ऐसा नहीं आएगा. स्टार फ्रॉम z क्रॉस z टू r, ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं आएगा. So according to our syllabus we can say star is mapping from n cross n to n, and the definition is you can write star AB, or generally we will write in this way, equal to A plus B plus 1. It is called binary operation. Operation between only two elements, these are A and B. Operation between only two elements, these are A and B. So that's why it is called binary operation. It is one of the binary operations. If we take A equal to 1, B equal to 1, so 1 plus 1 plus 1 will be 3. Means 1 is related with 3. Getting my point? If we take A equal to 2, B equal to 1, so 2 plus 1 4. So 2 1 is related with 4. Getting or not? So it is one of the binary operation. And binary operation means operation between only two elements. See, addition is also binary operation. कैसे? अगर मैंने आपको पूछ लिया कि 3 plus equal to dash, this is my question, तो आप क्या करोगे? आप समझ जाओगे कि सर कुछ आज फंसाना चाहते हैं. भाई 3 plus equal to dash तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ. इट इज मीनिंगलेस क्वेश्चन. या तो सर की मिस्टेक हो रही है, या तो फिर वो हमें फंसाना चाहते हैं कि भाई बच्चे क्या बोल रहे हैं. सर वी नो दैट कि भाई एडिशन करने के लिए एटलीस्ट 2 numbers शुड बी देयर. जब तक हमारे पास 2 numbers नहीं होंगे, 2 एलिमेंट n या z या q या r के नहीं होंगे, we can't add them. So it is meaningless question. So for addition we know that at least 2 elements should be there. So अगर मैं लिखूं कि 3 plus 5, then you can give easily answer. आप सीधा बोल दोगे सर इसमें सोचने वाली बात क्या है? It is obvious reason. It is 8. तो जब तक मेरे पास 2 नंबर्स नहीं होंगे हम एडिशन नहीं कर सकेंगे. इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन. अरे इंटरसेक्शन इन सेट थियरी, इंटरसेक्शन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन. व्हाई? सी, अगर मैं पूछूं कि भाई सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन इक्वल टू डैश, गिव मी आंसर. नो वन कैन गिव द आंसर. इट इज चैलेंजिंग क्वेश्चन. भाई कहां से चैलेंजिंग हुआ? 99% आर फेल. फेल ही होंगे ना, क्या होगा? क्वेश्चन ही रॉन्ग है भाई. भाई ए इंटरसेक्शन का मतलब कुछ होता ही नहीं है.
फॉर द इंटरसेक्शन ऑपरेशन देयर शुड बी टू सेट्स, हमारे पास एक ही है, सो इंटरसेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन एंड यूनियन भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये चार तो ऑलरेडी हमारे पास है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, रिमेंबर इट। सो ये होगी बाइनरी ऑपरेशन की इंट्रोडक्शन। Binary operation is an operation between two elements. Remember it. That's why the domain is in Cartesian product. Domain is in Cartesian product. It is the relation between two elements of this set. ये चीज हो गई। अब यहाँ से अगर कोई नया टॉपिक आता है तो ऑब्वियस वो खुद की छोटी सी तो छोटी सी भी दुनिया लेके आएगा, उसका खुद का एक वर्ल्ड बनाएगा, उसके खुद के कुछ रूल्स बनाएगा, उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज बनाएगा, वर्किंग रूल्स बनाएगा, उसको फॉलो करके ही हमें आगे जाना है। सो वी आर नाउ इन द आइलैंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इट इज अ स्मॉल आइलैंड ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। अगर हम आइलैंड पे चले गए तो आइलैंड का जो किंग है, जो ओनर है, उसके जो रूल्स है उसी हिसाब से हमें वहां पे सब कुछ करना पड़ेगा। सो बाइनरी ऑपरेशन इज एन आइलैंड इन दिस चैप्टर। तो भाई क्या रूल्स है, क्या उसके वर्किंग रूल्स है, क्या प्रॉपर्टी है, चलो देखते हैं। First is commutative law. Commutative means order change कर सकते हैं कि नहीं। First is commutative law means order change कर सकते हैं कि नहीं। See, if A star B equal to B star A, then we can say commutative law is satisfied. उसका satisfaction हो रहा है, so commutative law वहां पर है, right? If A star B is B star A, then star is called commutative. Star is called commutative. This binary operation star is commutative. वो commutative law को satisfy कर रहा है। Now associative law. Second one is ये सारे रूल्स आपको पता है, पर राइट नाउ वी आर इन द वर्ल्ड, इन द कुछ भी बोल दो, दुनिया जो भी है, आइलैंड उसमें है बाइनरी ऑपरेशन के वहां पे, तो उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो एसोसिएटिव लॉ। इफ A star B star C equal to A star B star C, then we can say star is associative or associative law is satisfied by the star। यहाँ पे star associative law को satisfy कर रहा है। क्लियर पॉइंट। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो टॉपिक्स है वो आ रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये वाला जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। अभी आइडेंटिटी के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, कि जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। शायद आपको पता है क्यों भाई एडिशन की आइडेंटिटी है। इफ वी ऐड जीरो इन एनी नंबर, इफ वी ऐड जीरो
in any number it gives always same number, means that number जीरो की कोई इस पे इफेक्ट नहीं होगी. 0 + 3 is 3. आप चाहे कोई भी नंबर ले लो उसमें जीरो ऐड करो, नंबर रिमेन सेम. दैट्स व्हाई जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. 1 is multiplicative identity. 1 is if you multiply any number by 1, answer remain that number. So 1 is multiplicative identity. याद रखो, union is additive identity for, sorry, union is identity, हाँ, union is identity element for you. क्यों? Sorry, intersection is identity for you, because if we union, intersection is identity for universal set, because A intersection U, A intersection U के साथ आप किसी का भी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन. अभी समझ लो कि भाई यूनिवर्सल सेट का आप किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लोगे, आंसर रिमेन दैट सेट. सो याद ऐसे रखो कि यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन. इन द सेम वे null set is identity for the union operation, because addition is operation, intersection is operation, union is operation. So null set is identity for union, universal set is identity for intersection, 0 is identity for addition, and 1 is identity for. तो ये फिक्स हो गया, इसमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकेंगे. पर अगर हमारे पास कोई नया बाइनरी ऑपरेशन आया, कोई नया ऑपरेशन आएगी ये चार को छोड़ के, तो उसका खुद का कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हो सकता है, मे बी, नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले. बराबर याद रखना. इफ A star E equal to E star A equal to A, then E is called identity element. Then E is called identity element. If A star E equal to E star A equal to A. अब सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो पूरे सेट के लिए होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है. कि भाई 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर 3, ऐसा नहीं है. एडिशन ऑपरेशन के लिए 0 इज ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट. मतलब ये बात हो गई यूनिवर्सल, कि चाहे आप 0 में कोई भी नंबर ऐड कर दो, चाहे n का ले लो, z का ले लो, q का ले लो, r का ले लो, w का ले लो. समझ रहे हो ना मेरी बात? सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन. मतलब ये यूनिवर्सल बात है. इन द सेम वे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो अब यहां पे e हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट के लिए, नॉट फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट. और इसके बाद हम जो टॉपिक डिफाइन करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलर होगा. जैसे मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 3. भाई इनवर्स ऑफ 3 इज व्हाट? सो इनवर्स ऑफ 3 इज -3, बिकॉज आफ्टर रिगार्डिंग टू एडिशन, अकॉर्डिंग टू एडिशन, -3 is additive inverse of 3 and 3 is additive inverse of -3, because when we add them it gives identity element. तो देखो अगर आइडेंटिटी का ही बॉर्न नहीं हुआ है, उसका अभी बर्थ हुआ ही नहीं है, तो समझ लो कि इनवर्स एलिमेंट की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 का अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं है
तो हाउ कैन वी से these are inverse of each other? So -3 is additive inverse of 3. Inverse वर्ड इंग्लिश में दोनों के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए कॉमन है, जबकि हिंदी गुजराती में उनके लिए अलग वर्ड दिए हुए हैं। पर यहाँ पे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से बोला हुआ है। इन द सेम वे वी कैन सी 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भी जो 1/3 वो पर्टिकुलर 3 का इनवर्स है। सो व्हेन वी राइट 4 into 1/3 it doesn't gives 1, वो कभी 1 नहीं देगा, बिकॉज 1/3 इज इनवर्स ऑफ 3 ओनली। तो जो इनवर्स एलिमेंट है वो पर्टिकुलर होता है, इंडिविजुअल होता है, पूरे सेट के लिए नहीं होता। ये बात बराबर दिमाग में आप घुसा दो कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिवर्सल होता है जबकि इनवर्स एलिमेंट पर्टिकुलर होता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of inverse element or inverse. If A star B is B star A is identity element, अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में, अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में by some operation answer is being identity element, then both the elements are called inverse of each other. यहां पे हम लिखेंगे if this then P is inverse of A, B is inverse of A। मतलब अगर B वो A का इनवर्स है तो A भी B का इनवर्स बनेगा, B भी A का इनवर्स डैम श्योर बनेगा। तो ये जो 4 टॉपिक है हमारे पास और इंक्लूडिंग डेफिनेशन 5 टॉपिक्स, डेफिनेशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये बराबर समझना जरूरी है। दीज आर द रूल्स, दीज आर द वर्किंग रूल्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर द आइलैंड बाइनरी ऑपरेशन इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। बराबर, तो यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सो हम चालू करेंगे सम्स एक्सरसाइज 1.4। नाउ सी इन एक्सरसाइज 1.4 क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन whether or not each of the definition of star giving below gives a binary operation in the event that star is not binary operation, give justification for this। मतलब ये बोला हुआ है कि हमें यहाँ पे कुछ बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए हैं, वो सही में है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आप एक्सप्लेन करो उसे। बराबर, सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 उसका 1 का फर्स्ट इज ऑन जेड। ऑन जेड का मतलब होगा स्टार इज मैपिंग फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड, स्टार इज मैपिंग फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड। याद रखना ऑन जेड स्टार इज ए स्टार बी इज ए माइनस बी। ऑन जेड प्लस है, सॉरी, on Z plus A star B is A minus B, this is the operation। अब यहां से देखो A मुझे कहां से सिलेक्ट करना है, Z में, Z प्लस में से, B Z प्लस में से, एंड आंसर शुड बी इन Z प्लस। अगर इन तीनों में से किसी ने मना कर दिया तो ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे देखो इफ A is equal to 2, B is equal to 5, then 2 star 5 is 2 minus 5 is minus 3, not a member of Z plus, therefore
star is not binary operation. स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, याद रखना है ये सब चीजें बेजे में होनी चाहिए. स्टार इज नॉट, इन दिस केस स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. सेकेंड वन, ऑन Z प्लस सेम A star B is AB. Now see, A star B is AB. अभी आप देखो कि आपके पास ऐसे कोई एलिमेंट्स है Z प्लस के कि यहां रखने से आंसर Z प्लस में ना मिले, है ऐसा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is always positive integer. The product of two positive integers is always positive integer. So here, for all AB belongs to Z plus, A star B is AB is also member of Z plus, and therefore star is binary operation. Therefore star is binary operation. Number 3, on R means star is mapping from R cross R to R. Star is mapping from R cross R to R. On R, star is defined by A star B is AB. It is obvious result. The product of two real numbers is real. So very easy. So जल्दी करो. Question number 4. On Z plus, A star B, चलो, it is an exam for you, challenging. By when we take modulus, obvious it will be in Z plus. So by first नजर, हमारी पहली नजर से तो लग रहा है बाइनरी ऑपरेशन, बट व्हेन वी यूज सेकेंड नजर थोड़ा हल्का सा लफड़ा लग रहा है, बिकॉज वी नो कि इफ वन से नो मीन्स ऑल से नो. सो व्हेन वी टेक फॉर A is equal to 2, B is equal to 2 star 2 is mod 2 minus 2 is 0, which is not member of Z plus. And therefore, if one say no means all say no, therefore star is not binary operation. Star is not binary operation. Getting or not? चलो next, fifth and last. On Z plus, defined by A star B is equal to A. It is also obvious result. When we take the value of A from Z plus, answer will be in Z plus. So it is binary operation. In homework you can. तो ये सारी चीजें हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन. हमारी आज उससे मुलाकात हुई, थोड़ी जान पहचान हुई, उससे थोड़ी बातचीत भी हमने की, कभी कभी लोचा भी हुआ, मना कर दिया, हाँ भी बोला. मतलब पूरा जो आइलैंड है एक बार हमने घूम चुका. अभी 1-2 जगह और बाकी है, ये वाली वहां जाना है अभी, और ये देखना है कि कैसी है. और ऑब्वियस आइलैंड में तो सब जगह देखने जैसी होती है. तो चलो देखते हैं यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्या करना है हमें?
देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो जगह पे हम नहीं गए थे वही जगह पे जाने के लिए बता रहा है कि फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। मतलब ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई स्टार स्टार है कि नहीं, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अगर है देन वी विल चेक कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले तो स्टार स्टार है कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ये हमें देखना है। हाँ, तो देखो स्टार स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है, कैसे? तो अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो हमें इलस्ट्रेशन नहीं देने। इन जनरल वी हैव टू गिव द आंसर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्टार बी is A minus B is also member of Z, and therefore star is binary operation. Therefore star is binary operation. Now we have to check it is commutative or not, associative or not. बराबर? चल for commutative, A star B is equal to, हाँ अगर कम्यूटेटिव है तो प्रूव करेंगे, और अगर नहीं है तो हम इलस्ट्रेशन लेंगे। जैसे कि 2 स्टार 5 इज 2 minus 5 is -3, 5 star 2 is 5 minus 2 is 3. These are not equal number. Therefore 2 star 5 is not equal to 5 star 2. Therefore star is not commutative. Star is not commutative. Now for the associative law. Now 2 star 3 स्टार 5, उसी के लिए भी हम इलस्ट्रेशन लेंगे। 2 स्टार भाई 3 स्टार 5 मीन्स 3 minus 5, 3 minus 5 is -2, 2 star -2 is 2 minus -2 is 4, and after changing the group 2 star 3 star 5 equal to 2 star 3 is 2 minus 3 star 5, 2 minus 3 is equal to -1 minus 5. Therefore 2 star 3 star 5 is not equal to 2 star 3. Therefore star is not associative. Therefore star is not associative. Clear point? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऐसा बोला तो नहीं कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ऐसा चेक करो, इसीलिए हम डायरेक्ट चेक करें कि बाइनरी ऑपरेशन तो है। हमें ये चेक करना है कि वो कम्यूटेटिव है कि नहीं। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, on Q the definition of star is A star B is AB plus 1, A star B is AB plus 1। अभी आप देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। तो चलो पहले कम्यूटेटिव के लिए हियर A star B is AB plus 1. Can we write BA plus 1? If it is BA plus 1, then we can say it is B star A. So if A star B, then B star A, and therefore star is commutative. Now for the associative. अभी आप देखो एक ऐड करने के बाद लॉ ऑफ एसोसिएटिव कैसे फुलफिल होगा, वो नहीं होगा। तो हमें इलस्ट्रेशन देना है लाइक दिस।
1 star 2 star 3 equal to 1 star 2 into 3 plus 1 according to definition EB plus 1, 2 3 is 6 plus 1 is 7, so 1 star 7 is 1 into 7 plus 1, that is 8. It is LHS. Now for RHS, 1 star 2 star 3 equal to 1 star 2 means 1 into 2 plus 1 star 2, 1 into 2 plus 1 is 3 star 2 is 3 into 2 plus 1 is 7. So these are not equal. It means that 1 star 2 star 3 not equal to 1 star 2 star 3. Therefore, star is not associative. Getting or not? So very easy topic. अगर थोड़ा सा समझ लो तो कहीं भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। अभी हमारे पास और 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये चारों क्वेश्चन आपको चेक करने हैं कि भी कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप कि आप कर सकोगे, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये 4 सम्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। सो टुडे आई विल सेंड द पेपर ऑफ चैप्टर नंबर 3 and 4. You have to give the exam. Remember it. Okay, see you. Bye.